Hello, students. I hope you are doing well. So, after a long time, I have decided to make a video for class 11. So, this is your first chapter from the book Hornbill, and the title of the chapter is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So, before starting the introduction of the chapter, I would like to give you brief information about the writer Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist, and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well known novel. He was born in 2nd February 1915 and died in 20 March 2014. So, this was the brief description of the author. Now, I would like to give you introduction of the chapter. The Portrait of a Lady is the story of the author. He describes his relationship with his grandmother over the years. He pens down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. He explains her appearance, which helps to create an image in the reader's mind. Now, there are few expressions. So, before reading this chapter, I would like to give you the meanings of the expressions. And the first one is the thought was almost revolting. So, इसका मीनिंग है फाइंड टू हार्ड टू बिलीव मीन्स जब हमें किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता है वी फील डिफ़िकल्टी कि हमें कोई चीज़ बताई जा रही है एंड वी आर नॉट एबल टू बिलीव ऑन दैट, तो उसके लिए यूज़ किया है. सो इन दिस चैप्टर जब ऑथर को ये बताया जाता है कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग थी, प्रिटी थी, तो उनके लिए इस बात पे बिलीव कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ an expense of pure white serenity. So, here it refers to the calm, peaceful and serene character. So, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर किया है लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स मीन्स जैसे कि विंटर्स के डेज़ में माउंटेन्स जो हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं और जिन्हें देख के हमें काफ़ी पीसफुल, सूदिंग, एक कामनेस फील होती है. एग्जैक्टली ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उनको देखकर भी कुछ ऐसा ही फील होता है. अ टर्निंग पॉइंट मीन्स चेंजिंग पॉइंट और चेंजिंग टाइम. चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कैसे चेंज आया एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, वो हम यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. दिस मीन इसकी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने अपनी लोनलीनेस को, आइसोलेशन को विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना लिया. नेक्स्ट वन इज अ वेरिटेबल वेंडम ऑफ चेरपिंग्स. सो हियर it refers to the noise and confusion caused by the chirpings of the sparrows. तो चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि ग्रैंड मदर जो है वो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी और जब भी वो स्पैरोज़ आती हैं वो चिरिप करती हैं एंड दे आर लार्ज इन नंबर्स, तो इसीलिए उनका जो चहचहाना जो है एक डिस्टर्बेंस, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. ये उसके लिए एक्सप्रेशन को यूज़ किया है. देन फ्रिवलस रिब्यूक्स means light-hearted scolding. And the last one is the sagging skins of the dilapidated drum. Mean the loose surface of the worn out drum means कि
एक पुरानी सी जो लाइक ढोल ले लो, ढोलकी ले लो, जिसकी स्किन जो है वो लूज़ हो रखी है, उसको बजाने से जो साउंड आती है, ये वो है। नाउ स्विच टू द मेन चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty been and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. वेल सो यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या कहते हैं, सो स्पीकर जो है हमारी स्टोरी के, वो खुद ही राइटर हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी एग्जैक्टली जैसे सबकी ग्रैंड मदर्स होती हैं वैसी थी, और वो शी वॉज ऑल्सो एन ओल्ड लेडी, वो भी एक बूढ़ी औरत थी। और बोले कि वो बहुत ओल्ड थी एंड उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, और वो उनको ऐसे ही कुछ 20 ईयर से अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखते आ रहे थे। पीपल मीन्स आस पड़ोस के लोग उनको क्या कहा करते थे कि कभी आपकी दादी बहुत ये कभी यंग हुआ करती थी एंड शी वॉज गुड लुकिंग। तो और उनके हस्बैंड थे। तो कहते हैं कि नरेटर यहाँ कहते हैं कि ये सारी बातें जब मेरे नेबरर्स मुझे कहते थे तो मेरे लिए इन बातों पे बिलीव कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। नाउ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ऑथर, क्योंकि ऑथर जब उनका बर्थ हुआ तो उन्होंने ग्रैंड मदर को ओल्ड देखा, फिर वो बड़े होते गए तो स्टिल दादी जो थी उनकी फिज़िकल अपीयरेंस में देयर वाज नो चेंज, और एज में वो बढ़ रही थी बट फिज़िकली वो वैसी की वैसी, जितनी वो बूढ़ी उन्होंने स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में देखा था उतने ही बूढ़े वो आगे भी उनको देखते रहे। सो दैट्स वाई उनको उनके लिए ये मानना डिफ़िकल्ट था कि कभी ये सुंदर हो सकती हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं एंड ऑल। फर्दर यहाँ पे नरेटर जो है वो क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम के अंदर वहाँ पे उनके एक पिक्चर हैंग है एंड वो किनकी है, उनके ग्रैंडफादर की है। और उस पिक्चर के अंदर वो अब बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पिक्चर के अंदर कि उनके जो ग्रैंडफादर की जो पिक्चर है उसमें उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन, एक पगड़ी पहनी हुई है और काफ़ी लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, ढीले से कपड़े पहने हुए हैं। उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, काफ़ी लंबी है एंड वाइट है, क्योंकि वो भी ओल्ड हैं। बताया है कि कुछ उनकी अपीयरेंस को देख के लग रहा है कि वो कुछ 100 ईयर्स के नियर होंगे। और उनकी बियर्ड ने क्या किया हुआ है, उनके चेस्ट का काफ़ी पार्ट कवर किया हुआ है। एज़ वी नो कि जैसे जो सिख होते हैं वो बियर्ड को रखते हैं, एंड वी कैन इमेजिन कि कैसे उनकी लंबी सी दाढ़ी ने उनके चेस्ट के काफ़ी सारे पार्ट को कवर किया होगा। He didn't look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. So, further he says कि कहते कि पिक्चर में देख के तो मेरे दादू जी को या उस आदमी को देख के लगता नहीं है कि कभी उनकी कोई वाइफ रही होगी या उनके बच्चे रहे होंगे। हाँ, इतना जिस तरह से वो एज्ड दिख रही हैं तो देख के ये लग सक सिर्फ यही हम गेस कर सकते हैं कि हाँ, इस आदमी के बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। कहते कि जैसे कि मेरे ग्रैंड मदर के बारे में ये सोचना कि बीइंग यंग एंड प्रिटी, तो वैसे ही दादू के बारे में भी सोचना कि कभी उनकी वाइफ होगी, उनके बच्चे होंगे। सो ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए क्या थी, ये चीज़ मानना कि भाई वो कभी यंग थे या प्रिटी थे, तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मीन्स वो इन बातों पे बिलीव नहीं कर पाते थे। शी often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fables on the prophets she used to tell us. Further narrator says कि अक्सर ग्रैंडमदर क्या किया करती थी, कहती कि अपने बचपन की कहानियाँ बताया करती थी कि व्हेन वी वर चाइल्ड वी यूज़ टू प्ले दिस एंड दिस गेम, इस तरह से वो बताती होंगी। कह रहे कि ये सारी बातें सुन के एक बड़े आदमी, एक एज्ड आदमी से ये बातें सुन के कहते कि हमें ना बड़ा ज़्यादा
इलॉजिकल सा लगता था कि, और इलॉजिकल एंड साथ में अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, लगता था कि इतना बड़ा आदमी ऐसे बचकाने कोई गेम खेलता होगा, इस तरह से उनको वो अपसर्ड लगता था। एंड वो उनकी ये जो बचपन की वो जो अपनी स्टोरीज़ बताया करते थे, ऑथर कहते हैं कि हम, मैं और मेरे जो कज़न्स थे, हम उनकी कहानियों को ट्रीट करते थे लाइक जैसे फेबल्स होती हैं किसी प्रोफेट्स की, और इस तरह से ही हम उनकी भी स्टोरीज़ को कंसीडर करते थे। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. So here, narrator says, now again he's uh, giving the physical appearance of his grandmother, and he says कि उनकी दादी जो थी वो थोड़ी सी बेंट शॉर्ट थी, मीन्स टॉल नहीं थी, हाइट कम थी, थोड़ी मोटी थी एंड थोड़ा झुक के चलती थी। बीइंग ओल्ड, क्योंकि जो ओल्ड, जब आपने देखा है कि ओल्ड इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो थोड़ा सा उसके शोल्डर जैसे बेंट हो जाते हैं, तो इस तरह से उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई है यहाँ पे। एंड उनके फेस पे अगेन ही सेज कि क्रिस क्रॉस में मीन्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूरे फेस पे रिंकल ही रिंकल्स थे। वो कहते हैं कि नो, बाकी हमें कुछ पता नहीं, यस, बट हम इस चीज़ को लेके सर्टन थे कि हमारी दादी हमेशा से ऐसी ही थी जैसे कि हम बचपन से उनको जानते आए हैं। फर्दर, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. फर्दर ऑथर्स कहते हैं कि हमारी दादी ओल्ड, वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि इसके आगे वो और वो बूढ़ी नहीं हो सकती, और वो कुछ 20 सालों से वो उनकी जो एज थी वो रुक गई थी। सो हियर नॉट एज, अगर हम कहें कि फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस जो थी वो स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी, एज जो थी उनकी बढ़ रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। फर्दर नरेटर सेज कि वो कभी भी, कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती, कभी यंग या खूबसूरत तो नहीं वो हो सकती, हाँ होंगी कभी, बट वो हमेशा से ही कैसी थी, ब्यूटीफुल मीन्स काइंड हार्टेड थी, वो दिल से बहुत अच्छी थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. फर्दर क्या कहते हैं वो, द वर्ड हॉबल्ड मीन्स वॉकड इन एन अकवर्ड वे, बड़े अजीब तरीके से चलना। तो बोले कि उनकी जो दादी थी वो स्पॉटलेस वाइट, बीइंग विडो, क्योंकि उनके दादू, जैसे हमने देखा कि पिक्चर टंगी हुई है, दैट मीन्स कि और दादी जो हैं ये चीज़ बता रही है कि वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हैं, तो मे बी उनके हस्बैंड जो हैं वो डेड हों, तो वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी। एंड उनका एक हाथ जो था वो कहाँ पे रेस्ट कर रहा होता था, रखा होता था उन्होंने अपनी वेस्ट पे, अपनी चाल को, स्टूप मीन्स वॉक, अपनी चाल को बैलेंस करने के लिए, एंड अदर वन जो था वो दूसरे हाथ में उनकी जपने की माला, जो हम आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा तुलसी की या अदर रुद्राक्ष की माला रखते हैं गॉड के नेम को रिसाइट करने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने वो माला उनके हैंड में होती थी, बिड्स की रोजरी होती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscapes in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So, further, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, उनके जो सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मीन्स हेयर, बाल, उनके जो वाइट कलर के हेयर थे अनकॉम्ड होते थे, तो वो उस फेस पे स्कैटर्ड, बिखरे हुए, एक पेल से मीन्स बेरंग फेस पे, और पकड़ मीन्स जो झुर्रियों से श्रिंक हो रखा है,
उनके फेस पे पूरे बाल बिखरे होते थे और उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे होते थे, कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल वे में प्रेयर्स, मीन्स वो कुछ हमेशा ही गॉड का नाम जो था वो रिसाइट करती रहती थी, बिल्कुल इनऑडिबल वे में. फर्दर ऑथर सेज कि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं पता कि कभी वो खूबसूरत होंगी, यंग होंगी, नहीं होंगी, बट अगेन ही सेज कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी. एंड उनकी जो उनकी जो अपीयरेंस है उसको कंपेयर किया है लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स, जैसे कि विंटर्स में स्नो से कवर्ड माउंटेन्स जो होते हैं जिनको देख के एक पीसफुलनेस, कामनेस जो है वो मिलती है, तो वो एक वैसी ही कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल थी एक शांति की, जो कि सेटिस्फाइड एंड पीसफुली अपने घर में वो रहती थी. नेक्स्ट वन इज माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. So now the main chapter is starting from here. So before this, we just read about the appearance of the grandmother and his grandfather and all. सो यहाँ से अभी क्या है, मेन चैप्टर स्टार्ट होता है. नरेटर यहाँ कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एंड वो दोनों ही क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. उनके पेरेंट्स जो थे ऑथर को ग्रैंड मदर के पास छोड़ गए और खुद कहाँ चले गए, वो सिटी में. अब क्योंकि वो दोनों ही विलेज में अकेले थे तो इसीलिए वो हमेशा ही साथ रहते थे एक दूसरे के. ग्रैंड मदर जो थी वहाँ पे विलेज में, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग नरेटर को जगाती थी, उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए. एंड जब वो उनको नहलाती थी, ड्रेसअप करती थी, तो वो एक मोनोटनस मीन इन अ डल, नॉट इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि एक बोरिंग वे में, मीन्स डेली ही वो वैसे ही सिंग सॉन्ग मैनर में क्या करती थी, प्रेयर्स गाती थी, इस होप में कि उनका जो ग्रैंडसन है वो इन प्रेयर्स को लर्न करे. एंड नरेटर कहते हैं कि ये इसमें उनकी उन प्रेयर्स को सुनता था, बट कभी भी मैंने इतना बॉदर नहीं किया, इतना कंसर्न नहीं शो किया कि मुझे कभी कि मैं उनको लर्न करूं. हाँ, मैं उनको सुनता था बस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी. Then she would fetch my wooden slate, and which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So further narrator says कि नहलाने के बाद उसके बाद वो क्या करती थी, ग्रैंड मदर जाती थी और उनकी वो जो वुडन मीन्स लकड़ी की जो स्लेट थी अर्लियर टाइम में जो यूज़ की जाती थी, तो वो लाती थी, जिसको ऑलरेडी उन्होंने प्लास्टर किया होता था येलो चॉक के साथ. फिर एक छोटा सा वो इंक पॉट जो है मिट्टी का, उसे लाती थी. रेड पेन, टाई, इन सब मीन्स जो भी उनको स्कूल में नीडेड मटेरियल था उन सबको वो एक बंडल में बांधती थी, फिर उनको वो दे देती थी. एंड आफ्टर ईटिंग द ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीस, तो रात की स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, नो लॉन्गर फ्रेश हम कह सकते हैं, जो ताज़ी ना हो, तो वो बासी चपाती का ब्रेकफास्ट करके उसके ऊपर बटर एंड शुगर स्प्रेड करके ये खा के देन वो दोनों ही स्कूल जाते थे. एंड ग्रैंड मदर जो थी वो क्या करती थी, अपने साथ और जो बची हुई चपातीज़ होती थी वो कैरी करती थी, सो दैट कि वो विलेज के डॉग्स को फीड कर पाए. सो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियर होगा. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो.